Hello students, today we are going to talk about Toru Dutt's beautiful poem, Our Casuarina Tree. Toru Dutt was an Indian poet who wrote in French and English. She was born in Calcutta in a respectable Bengali family. Her father was a linguist and her mother was a housewife, but she was deeply interested in Hindu mythology. And Toru Dutt was the youngest child after her sister Aru and brother Abzu. And they converted to Christianity in 1862. She received her education in France and England and was greatly impressed by English romantic poets. Then she returned to India in the early 1870s and took to learning Sanskrit. Her poetry comprises A Sheaf Gleaned in French Fields, which was published in 1876, and then there is also unfinished. Her two novels are there which are unfinished, Bianca or The Young Spanish Maiden, written in English. And then there is a famous work of her Ancient Ballads and Legends of Hindustan, which was published posthumously. After her death it was published. She died at a young age in 1882. That publication was in 1882. She died in 1877, born in 1856. So anyway, now this is a very remarkable poem where memory and nostalgia interplay in the lore of loss and longing. The tree is a tree also, as well as symbol of homeland, her joyous childhood. So let's see, we will talk about it. She has used various beautiful metaphors, similes, symbols, and when we move towards the fourth stanza of the poem, then the poem becomes a little bit spiritual also. So, so my point is that Toru Dutt now gets settled in France. She is living there, and Casuarina tree is a tree in their homeland in India. So now she is a grown-up lady and she recalls her memories associated with the Casuarina tree. The poem is not about Casuarina tree. The poem is about her memories of childhood and her nostalgia. Nostalgia, you understand? Nostalgia मतलब past को, अपने childhood को याद करके वो दुखी हो रही है, and the poet in her wants कि that time should come back, है ना? And then she also recalls कि how her brother Abzu and Aru, they were also with him, with her, and how they used to play, है ना? All her childhood memories come out when she talks about that tree. So Casuarina tree is just a media. It's just a way, it's just a medium to talk about Toru Dutt's childhood, her memories, her nostalgia, her feelings, what she feels about that. What role the tree has in bringing out poetic talent of Toru Dutt. Let's see. Like a huge python winding round and round the rugged trunk, indented deep with scars, up to its very summit, near the stars, a creeper climbs. Poetry is always interpreted with the punctuation marks. You see? Like a huge python. Right in the beginning, she has used simile, like. Simile is what? Comparison between two dissimilar things.
but some similarity is there and it is a direct comparison. That's why the writer uses like or as words, है ना? So she says like a huge python. Python is what? Asgar. Huge मतलब बहुत बड़े size. तो like a huge python winding round and round the rugged trunk. Trunk मतलब तना. Rugged मतलब जो रफ सा है ना? अब पाइथन की बात कर रहे हैं तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि तना जो है उस पेड़ का बहुत चौड़ा है और बहुत पुराना हो गया, बहुत रफ हो गया. तो लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, गोल 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 लिपटा हुआ है उस ट्रंक, उस तने के साथ जो कि रफ है. इंडेंटेड डीप विद स्कार्स, और उस ट्रंक पे क्या है, उस तने पे क्या है, बहुत ज्यादा डेंट पड़े हुए हैं. डेंट समझते हो ना, खड्डे से पड़े हुए हैं बहुत सारे. अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स. अब यहाँ स्टार्स क्या दिया, स्टार्स मतलब आकाश को छूते हुए, यानी कि बहुत ऊंचा पेड़ है. स्टार समिट, समिट मतलब समिट नियर द स्टार, समिट मतलब चोटी. उस पेड़ का जो ऊंचाई है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो तारों को छू रही हो, है ना? तो इतना बड़ा पेड़ है, तो नेचुरली उसका जो ट्रंक है वो भी बहुत चौड़ा होगा और रफ सा है. और उसने बताया कि इट इज इंडेंटेड डीप विद स्कार्स, और उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे ऐसे गड्ढे गड्ढे से बने हुए हैं, है ना? और उसकी ऊपर वाली चोटी तक क्या हो रहा है, क्रीपर क्लाइम्स. यहाँ आके लाइन थोड़ी क्लियर हुई ना कि पाइथन किसको कह रहे हैं, क्रीपर को. क्रीपर मतलब एक बेल है जो कि एक बहुत बड़े पाइथन की तरह से उस ट्री के ट्रंक को राउंड एंड राउंड वाइंड कर रही है ऊपर तक, है ना? कि एक बेल, तभी तो उसको पाइथन के साथ कंपेयर किया, अजगर के साथ कंपेयर किया, है ना? कि भी वो क्रीपर क्लाइम्स, क्रीपर क्लाइम्स, देखो एलिट्रेशन यहाँ यूज किया ना, क्रीपर क्लाइम्स. तो एक क्रीपर जो है वो पाइथन की तरह से है और इतना बड़ा पेड़ है, उसका तना इतना रफ है, इतना चौड़ा है, जिसके ऊपर गोल 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 घूमे हुए हैं क्या, वो क्रीपर. और वो पेड़ जो है बहुत ऊंचा है, स्टार्स को लगता है जैसे टच कर रहा हो. Here first stanza is just the description of that tree, in whose embraces bound no other tree could live. So it's a that creeper has covered the whole of the trunk, है ना? उस क्रीपर ने ही उस पेड़ के तने को कवर कर रखा है, घेर रखा है ना? तो नो अदर प्लांट, नथिंग एल्स कुड बी देयर, नथिंग एल्स कुड ग्रो ऑन दैट ट्री. क्योंकि सारा स्पेस कौन ले रहा है, सारी जगह, सारी उसकी जो वो है इम्यूनिटी, उसकी जो सारी वाइटलिटी है वो किसने ले रखी है, इस क्रीपर ने ले रखी है. तो एम्ब्रेसिस का मतलब क्या है, भी लिपटा हुआ है वो बहुत ज्यादा, क्या, वो क्रीपर. तो और कोई ट्री वहां पे लिव नहीं कर सकता. बट गैलेंटली द जिएंट वियर्स द स्कार्फ. यहां पर अब मेटाफर यूज कर लिया. मेटाफर और सिमिली एक जैसा होता है. मेटाफर टेक्स फॉर ग्रांटेड कि दिस थिंग इज दिस, है ना? सिमिली में भी कंपैरिजन दो डिसिमिलर चीजों का होता है और मेटाफर में भी कंपैरिजन दो डिसिमिलर चीजों का होता है. सिमिली में लाइक या एज वर्ड यूज करते हैं, मेटाफर में लाइक या एज वर्ड नहीं यूज होता, है ना? तो जिएंट कौन हुआ, ट्री. जिएंट क्या होता है, बहुत बड़ा साइज का व्यक्ति, है ना? ह्यूमन बीइंग से इमेजिन करो 10 टाइम्स लंबा चौड़ा. तो जिएंट किसको कह रहे हैं हम, उस कैसुरीना ट्री को. इसने पर्सोनिफाई करा और उसको जिएंट बताया. वियर्स द स्कार्फ. अब स्कार्फ क्या हुआ, वो क्रीपर. उस बेल को इसने स्कार्फ कह दिया. और ऊपर क्या कहा था उसने, उसी क्रीपर को उसने सिमिली यूज की, तो ऊपर उसने उस क्रीपर को क्या बोला, पाइथन. अब यहाँ पर क्या कह रहा है
कि भी वो ट्री ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी जिएंट ने स्कार्फ पा रखा। एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बोस अमंग। देखो यहाँ फिर एलिट्रेशन है ना, क्रिम्सन क्लस्टर्स, क्रिम्सन केसरिया रंग के फूलों के गुच्छे हैं। क्रिम्सन क्लस्टर, क्लस्टर मतलब गुच्छा, क्रिम्सन मतलब केसरिया रंग, ऊपर क्या बोला, फ्लावर्स, तो केसरिया रंग के फूलों के गुच्छे लटक रहे हैं सभी ब्रांचेस पे, उस पेड़ की बोज मतलब ब्रांचेस, केसरिया रंग के फूलों के गुच्छे उन सभी ब्रांचेस के साथ लटके हुए। वेयर ऑन ऑल द डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, और वहां पर क्या सारा दिन बर्ड्स और बीज रहते हैं, क्योंकि इतना घना पेड़ है ना, इतना घना पेड़ है कि वहां पर सारा दिन बहुत सारे बर्ड्स और बीज रहते हैं, क्योंकि वहां फ्लावर्स भी तो बहुत है, ठीक है। एंड often at night the garden overflows with one sweet song that seems to have no close. And at night time, रात के समय में क्या लगता है कि गार्डन जो है, गार्डन कौन सा, उनके बचपन में, तोरुदत्त के बचपन में जो उनके घर में गार्डन था, है ना, और उसी गार्डन में ही तो वो कैसुरीना ट्री है। तो एट नाइट टाइम द गार्डन सीम्स टू बी ओवरफ्लोइंग विद वन स्वीट सॉन्ग। देखो फिर एलिट्रेशन आया, जगह जगह पे पोएटस ने एलिट्रेशन यूज किया अपनी बात को और रिदमिकल बताने के लिए और म्यूजिकल बताने के लिए। तो कहते हैं जनरली रात के टाइम ऐसा लगता है कि गार्डन इज ओवरफ्लोइंग वन स्वीट सॉन्ग that seems to have no close, and that song is not a is a that song is such which seems to have no ending, है ना, song is continuous one, song ऐसा है कि वो खत्म ही नहीं होएगा, सारा दिन ही वो धुन सी बजती रहती है रात के टाइम। वो सॉन्ग कौन सा हुआ, कोई इंसेक्ट्स की आवाज आ रही है, कोई बर्ड्स की आवाज आ रही है ना, वो सॉन्ग होता है। लिटरेचर पढ़ते हो तो सॉन्ग यहाँ पर वो कोई फिल्मी गाना नहीं चल रहा है ना, सॉन्ग का मतलब द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स और द साउंड्स मेड बाय डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, सो ऑल दैट थिंग्स मेक द म्यूजिक। संग डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री, डार्कलिंग का मतलब क्या है कि डार्कनेस में सुनाई दे रहा है, वो डार्कनेस में गाया जा रहा है वो, और कहाँ से सुनाई दे रहा है वो गीत, हमारे ट्री से। हमारा ट्री कौन सा, कैसुरीना। वाइल मैन रिपोज, जबकि जो लोग हैं वो रेस्ट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, सुबह सुबह ही पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगती है, दैट इज व्हाट, दैट इज द सॉन्ग। और रात के टाइम क्या है, द इंसेक्ट्स दे माइट बी मेकिंग डिफरेंट साउंड्स। Next, when first my casement is wide open, thrown at dawn, dawn अर्ली मॉर्निंग को बोलते हैं, अभी सनराइज नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, थोड़ा थोड़ा दिन होता है, राइज होने ही वाला है ना। केसमेंट का मतलब विंडो। शी टेल्स अस, शी रिकॉल्स हर चाइल्डहुड डेज, तो उसको वो क्या कह रही है कि जब सुबह सुबह मेरे कमरे की हम खिड़की खोलती हूँ तो माई आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, मेरी आंखों को आराम मिलता है, मेरी आंखें खुश हो जाती हैं जब मेरी आंखें इस ट्री पे पड़ती हैं। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर, समटाइम्स मतलब कभी कभी और ज्यादातर विंटर में। और देखो डैश डाला ना, इस डैश का भी बहुत रोल होता है। डैश का मतलब है कि भाई वो स्ट्रेस दे रही है, अपने माइंड को रिकॉल कर रही है कि बचपन में ऐसा होता था। क्या होता था, on its crest a gay baboon sits statue like alone watching the sunrise। उसकी ऊपर, सबसे ऊपर उसकी क्रेस्ट पे, उसकी टॉप वाली चोटी पे, टॉप पे एक ग्रे कलर का लंगूर, बैबून मतलब लंगूर, स्टैच्यू की तरह से बैठा होता था, बिल्कुल अकेला। ऐसे लगता था कि वो बैबून जो है वो सनराइज की वेट कर रहा है। While on lower boughs his punny offspring
लीप अबाउट एंड प्ले। और जबकि छोटी वाली ब्रांचेस पे, वो मतलब ब्रांचेस, और छोटी वाली ब्रांचेस पे क्या होता था, पनी, पनी मतलब छोटे छोटे, ऑफस्प्रिंग मतलब उसके बच्चे, किसके, बैबून के। और छोटी ब्रांचेस पे उसके जो बच्चे थे, दे लीप अबाउट एंड प्ले, वो इधर उधर कूद रहे होते थे और खेल रहे होते थे। एंड फॉर एंड नियर कोकिलास, और दूर से आवाज किसकी आ रही होती थी, कोयल की आवाज आ रही होती थी, है ना। बर्ड्स की आवाज मॉर्निंग में ही आती है ज्यादा, तो यूं लगता था कि दूर से कोयल जो है वो भी दिन निकलते हुए, सूर्य उदय होते हुए सूर्य का और दिन की शुरुआत का वेलकम कर, ये मतलब वेलकम। एंड टू देयर पास्चर्स वेंट आवर स्लीपी काउज, स्लीपी काउज, काउज अभी स्लीपी है, नींद में ही है, और उनको सुबह सुबह निकाल देते हैं पास्चर्स की तरफ। तो गाय जैसे अभी नींद में ही है और उनको निकाल देते हैं फॉर ग्रेजिंग टू द पास्चर्स। तो वो समय होता था, तो वो समय होता था। एंड इन द शैडो, और शैडो में, क्योंकि अभी दिन पूरी तरह से राइज नहीं हुआ, तो शैडो में क्या होता था, on the broad tank cast by that whole tree, so beautiful and vast, the water lilies spring like snow embossed, है ना। और क्या होता था शैडो में, उनके घर में एक बहुत बड़ा गार्डन में एक बहुत ब्रॉड टैंक, बहुत बड़ा तालाब होता था उस ट्री के साथ में, उस ओल्ड ट्री के साथ में एक बहुत बड़ा टैंक होता था। और वो इतना खूबसूरत लगता था, इतना वास्ट, इतना बड़ा था कि उसमें क्या था, वास्ट मतलब वहां पे वाटर लिली, सुनते समझते हो आप, वाटर लिली फ्लावर्स का नाम है, व्हाइट कलर के बहुत सुंदर से फूल होते हैं। तो उस टैंक में सारे वो वाटर लिलीज फ्लावर होते थे, है ना, सारा टैंक उससे कवर्ड होता था, लाइक स्नो एम्बास्ड, तो ऐसे लगता था जैसे वहां पे बर्फ इकट्ठी हुई, है ना। है तो वाटर लिली फ्लावर्स, यहाँ पर फिर उसने सिमली यूज की, तो वो ऐसे लगता था कि जैसे कि वहां पर बर्फ इकट्ठी। But not because of its magnificence, dear is the casuarina to my soul. The poetess says that it is not that tree is so magnificent, है ना, that she likes casuarina tree. It is not because of the magnificence of the casuarina tree. Magnificence मतलब grandeur, splendor, उसकी grace, उसकी शान, शौकत जैसे आप कहते हैं ना। So it is not because of the magnificence of the tree that the tree is dear to her soul. कहती है कि ये ट्री इतना स्प्लेंडर लिए हुए है, इतना ग्रेसफुल है, इस वजह से नहीं है वो मेरी सोल को प्रिय है। वो किस वजह से है, beneath it we have played। यहाँ पर नॉस्टैल्जी आ गया ना, अपने बचपन को याद करके दुखी हो रही है कि इस पेड़ के नीचे तो हम खेलते होते थे, 2 इयर्स में रोल, हालांकि बहुत साल बीत गए। ओ स्वीट कंपेनियन, स्वीट कंपेनियंस कौन हुए, पास पड़ोस के बच्चे भी होंगे, बट शी रिकॉल्स मोर ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर हु आर नो मोर इन द वर्ल्ड नाउ, उसके बहन भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको रिकॉल कर रही है। ओ स्वीट कंपेनियंस लव्ड विद लव इंटेंस, जिनको वो बहुत ज्यादा इंटेंसली लव करती है, इंटेंसली मतलब बहुत गहराई से जिनको प्यार करती है। फॉर यूर सेक, कहती तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के कारण ही शैल द ट्री बी एवर डियर, ये ट्री मुझे हमेशा प्रिय लगेगा। फॉर यूर सेक, फॉर यूर सेक मतलब तुम्हारी वजह से, ये मेमोरी साथ में कि हमारे घर में होता था और हम सब बहन भाई इकट्ठे इसके नीचे खेलते थे, इस बात की वजह से, इस ट्री की वजह से मुझे मेरे बहन भाई की याद आ रही है ना। ब्लेंड विद योर इमेजेस इट शैल राइज इन मेमोरी, तो जब वो ट्री की बात करती है तो उसके दिमाग में क्या आ जाता है, इमेजेस आ जाती हैं। इमेजेस मतलब पिक्चर्स आ जाती हैं अपने ब्रदर सिस्टर की, उसको मेमोरीज सारी रिटर्न हो जाती हैं। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आईज, देखो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, कितनी सेंटिमेंटल सी हो गई पोएम यहाँ पर,
है ना। तो उसको लगता है कि वो जब ट्री की बात करती है तो उसकी मेमोरीज वापस आ जाती हैं और उन मेमोरीज में उसको अपने ब्रदर और सिस्टर दिखाई देते हैं। और फिर क्या होता है, उसकी आंखें जो हैं वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड सी हो जाती हैं, क्योंकि वो गरम गरम से आंसू से भर जाती हैं, क्योंकि दोज ब्रदर एंड सिस्टर दे आर नो मोर इन द वर्ल्ड। सो व्हेन शी रिकॉल्स दैट ट्री, शी gets full of sorrow. So she is full of sadness now. She is full of sadness now. What is that dirge-like murmur that I hear, like the sea breaking on a shingle beach? है ना। तो ये मोस्टली होता है बेटा, जो लोग फिलोसफिकल ज़्यादा होते हैं, मेलनकलिक ज़्यादा होते हैं, सेंटिमेंटल ज़्यादा होते हैं, वो जब भी दुख परेशानी से ज़्यादा भर जाते हैं तो आपने मूवीज सीरियल्स में भी देखते हो कि वो सी बीच पे चले जाते हैं, है ना। अब ये तो यहाँ तो ये पोइटस बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, तो उसको वहाँ कहीं पे भी बैठी हो उसको यूं सुनाई दे रहा है, अजीब सी मरमर साउंड सुनाई दे रही है। मरमर मतलब फुसफुसाने वाली आवाज़ सुनाई दे रही है। वो मरमर साउंड कौन सी है? फ्यूनरल लाइक है, डार्ज लाइक है, जैसे कि फ्यूनरल सॉन्ग होता है ना, किसी की मृत्यु पे जो शोक गीत गाया जाता है, तो उसको वो आवाज वैसी सी मरमरिंग साउंड सुनाई दे रही है। और वो साउंड है कैसी? जैसे जो पेबल्स हैं सी शोर पे, वो बीच से टकराते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। The advancing and retreating of the waves. When the waves advance, they throw the pebbles. When they go back, they take the pebbles with them. So this advancing and retreating of waves, it produces a sort of music, and that music is full of sadness. क्योंकि poetess is full of sadness, है ना। जब लहरें आती हैं तट की तरफ तो वो पत्थर लाके फेंकती हैं, छोटे छोटे छोटे, और जब जाती हैं तो उन पत्थरों को वापस ले जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद आती हैं, पत्थर फेंकती हैं, फिर ले जाती हैं। सो दैट प्रोड्यूसेस अ सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, बट दैट म्यूजिक इज लाइक ए डार्ज। दैट म्यूजिक क्या है? फ्यूनरल सॉन्ग जैसा है, शोक गीत जैसा, ऐसा पोइटेस को लग रहा है ना। इट इज द ट्रीज लेमेंट, लेकिन पोइटेस को क्या लग रहा है कि ये तो ट्री के रोने की आवाज है। An airy speech, ये तो स्ट्रेंज सी स्पीच है, ऑकवर्ड सी आवाज है ना, ऑकवर्ड सी आवाज है। ये तो मॉर्निंग सॉन्ग है, दुख भरी सी आवाज है। That happily to the unknown land may reach, वो आवाज किसकी है? ट्री के लेमेंट की आवाज है। उसको लगता है ये आवाज किसकी है? ट्री के रोने की आवाज है। हैप्पली मतलब शायद, शायद वो ट्री अगर इंडिया में रो रहा है तो उस ट्री के रोने की आवाज पोइटेस के पास भी पहुंच गई। That happily to the unknown land may reach, जो शायद अननोन लैंड, क्योंकि पोइटेस अब फ्रांस में है, फ्रांस के उस पे सी में बैठी है ना, वहां पे सी में के पास, सी बीच पे। तो she feels कि the lament of tree has reached to this unknown land in तोरूदत्स ईयर्स, है ना। ये तो पोएम मजा तो तभी आएगा, पढ़ तो समझ तो तभी पाओगे जब उसको बहुत इंटेंसली हम फील करेंगे और हम इमेजिन करेंगे कि हाँ कैसे आवाज आ गई इंडिया से, कैसे आवाज फ्रांस तोरूदत्त के कानों में पहुंच गई, है ना। क्योंकि वो डीपर सेल्फ से गा रही है, डीपर सेल्फ से गा रही है ना। So I hope you must have understood this stanza. So rewind the video again and again and try to understand next part of the poem, that is more spiritual or mystical little bit. So we will cover it in the next session. Thank you.